Hello everyone, this is Vikas Dubey and today I am going to discuss with you the concept of congruency in triangles. Okay, so students, before discussing the congruency, I just would like to tell you some concepts regarding the triangle, that what is a triangle. So students, as you know that triangle is a polygon made up of three line segments. Okay, A, B, C. ठीक है, तो these line segments by which it have been enclosed, that is known as the sides. Okay, so a triangle have three sides, AB, BC and AC. It have three angles, that is angle A, angle B, angle C. It is also written as angle ABC, angle BAC and angle ACB. So students, this angle ABC shows angle B, BAC shows angle A, ACB shows angle C. Okay, ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रायंगल. क्या होते हैं इसके थ्री साइड्स, क्या होते हैं इसके थ्री एंगल्स. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव वन एंगल, वन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी. दैट इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी. According to this, what do we know? According to this, sum of all three angles of a triangle is 180 degree. So students, since it is the last time revision, okay, because soon you are going to just after 1 week you are going to attempt your final examination. So I will not discuss the topic, I will not make this topic so vast. Okay, in short I will just explain. ठीक है, so let us start the congruence of triangles. So students, let us see what is this congruence. है ना, आपके पास in your daily life you use a lot of things like coin, you have book, है ना, NCERT मैथमेटिक्स बुक. तो NCERT मैथमेटिक्स बुक ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स बोथ इज आइडेंटिकल टू ईच अदर ना. दोनों क्या है, NCERT की अगर दो बुक है क्लास 9 की मैथमेटिक्स की, तो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है ना. दे विल बी नोन एज द कॉन्ग्रुएंट बुक्स. ओके, क्वाइन है ना, 2 रुपी के क्वाइंस हैं, ढेर सारे क्वाइंस हैं, दे विल बी नोन एज द कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, सिमिलर 2 रुपीज 5 रुपीज के क्वाइन है, वो सिमिलर होंगे. ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज समझिए कि टू ट्रायंगल्स, व्हाट आर दिस कॉन्ग्रुएंस. तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if all three corresponding sides are equal and all the three corresponding angles are equal in measure. ठीक है, these triangles can be slides, rotated, flipped and turned to be looked identical. देखो इसमें क्या होता है कि sometimes ना, जैसे अगर आपको टीचर ने बताया कि दिस ट्रायंगल ABC एंड दिस ट्रायंगल DEF, ओके, this side is 4, this side is 3, this side is 5, okay, and this is also 4, 3 and 5. Then what do you say? You say that these two triangles are congruent. ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, congruent है. ठीक है, these two triangles are congruent. Why you say? Because you could understand that the corresponding sides are equal. The corresponding sides are equal, but you will become confused when we write A, B, C and D, E, F. Okay, as we change the side, like this is 4, this is 5, this is 3, this is 5, this is 4, this is 3, then some of you will be confused that now they are not congruent. They are not congruent. So in such situations, what you have to do, you have to just rotate, you have to just flip your triangles to check whether they are congruent or not. So this is the congruency. Let us move further. We will discuss now the criteria of congruency, and before that I would like to tell you that what are the corresponding sides. What are the corresponding sides? Let us see. Suppose we have these two triangles. Suppose we have these two triangles and they are congruent to each other. Let us say this is triangle ABC, this is triangle DEF. Okay, and it have been given that triangle ABC is congruent to, this is the symbol for congruency, ABC is congruent to triangle DEF. Okay,
in this situation, the corresponding sides, you have to just check that in which manner they have been written. So AB and DE, BC and EF. Okay, BC, EF. Another is AC, DF. These are the corresponding sides. Mean to say AB, D, BC, EF, and AC, DF. These are the corresponding sides. Means AB is corresponding to DE, BC is corresponding to EF, and AC is corresponding to DF. Okay, and this angle A is corresponding to angle D. Angle A corresponding to angle D, angle B corresponding to angle E, and angle C corresponds to angle F. Okay, what happens if we write this like triangle ABC is congruent to triangle EDF? In this situation, you have to write that AB is corresponding to ED or DE. Okay, and BC is corresponding to DF. BC is corresponding to DF, and AC is corresponding to EF. You could just see that it have been changed now. Okay, it have been changed now. So according to this situation, you have to identify that which sides are their corresponding sides or which angle is the corresponding angle. So students, one word CPCT we use frequently here in congruency in triangle, that is the corresponding parts of, its meaning is corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles. Okay, so as we prove that two triangles are congruent, after that whatever you have to prove, you can prove that using this word by CPCT. Okay, if you have proved that two triangles are congruent, then their corresponding sides will be equal and corresponding angles will be equal. This is the full concept of the congruency in triangles. Okay, so let us see that how many criteria of congruency are there that we use. So the different criteria used to prove congruency between two triangles are SSS, that is side criteria of congruency, SAS criteria, that is side angle side, and ASA criteria, that is angle side angle, and AS criteria, angle side, and RHS criteria, that is right angle hypotenuse side. Okay, so I have a shortcut to remember this. I always used to discuss it with my student. Okay, that is SAS, AS, ASA, RHS and ओके ठीक। तो इस तरीके से आप क्या सास आस, जहां सास है वहीं आस है, और जहां आस है वहीं आशा है, और जहां आशा है वहीं कुछ ना कुछ तो रहस्य है ना। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग तरीके से रट सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स ना। ओके, तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या होता है, इसी में आपका ये छुपा हुआ है कि हमको एक्चुअल में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कैसे अप्लाई करना होता है। आप देख रहे हो कि साइड एंगल साइड मींस टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, जो बीच में रहेगा चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्लूडेड पार्ट, दैट मे बी आइदर एंगल, दैट मे बी आइदर साइड। So side angle side, it means two sides of this triangle ABC, like here you are looking at this BC and this QR, this AB and this PQ. The two sides of one triangle are correspondingly equal to two sides of another triangle and one included angle, angle B and angle Q here. It have been given. So in this situation we will say that by side angle side these two triangles are congruent. And what you will write, you could just see
that if you are writing ABC, triangle ABC is congruent with, then tell me what you will write. देखिए ये जो दो टू डबल डैश हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, डबल डैश से आ रहे, तो वी विल राइट PQR. We will write PQR because we are moving to double dash to single dash and included angle. Here we also would have to move from double dash to single dash. Okay, double dash to single dash, so that will be PQR. So triangle PQR is congruent with the triangle ABC. Okay, let us see. I hope you understood. Let us see the second situation. Second situation is ASA congruency condition. What is this ASA congruency condition? ASA congruency condition stands for angle side angle. This time what you would have to see, you would have to see that there should be two angles of one triangle should be equal to two angles of another triangle and included side means एक ही साइड पर दोनों एंगल बनते हों, है ना. In that situation we will say that by ASA congruency condition these two triangles are congruent. Let us see. Here we have AB. Here we have AB. AB is equal to what? PQ. AB is equal to what? PQ. Okay, and you are looking that angle A. Angle A is equal to what? Angle P. Na, angle A is equal to angle P. Okay, and angle B is equal to angle Q. Okay, so here we are looking that two angles and their included sides are equal. So by ASA we will say that triangles are congruent. So here how you will write this? You will write triangle ABC. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay, these are congruent by ASA congruency. So now let us move to angle side congruency condition. So students, what is this angle side congruency condition? ठीक है, this is simplified version, this is simplified form of this ASA congruency rule. How? Let's listen. देखो एक एग्जांपल देखो, ABC, ठीक है, ABC and DEF, these are two triangles. Let us say these are two triangles. This angle is 30, this angle is 30, this angle is 60, this angle is 60. Okay, these two angles are equal, na? These two angles are equal. What about the third angles? Third angles will be 90. Third angle will also be equal, है ना. ये जो थर्ड एंगल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. और जैसे ये दोनों इक्वल हुए, ठीक है, उसके बाद जैसे आपके पास मान लीजिए क्या कहा था कि इसमें ASA में क्या होता है? टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड. बट AAS में क्या हुआ कि अगर जैसे दो एंगल्स इसके इक्वल है ना, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, और कोई ऐसा साइड जो इंक्लूडेड ना हो, अगर वो दिया हो इक्वल, तो क्या हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? तो यहाँ पर ये रिजल्ट निकला कि यस, ऑब्वियसली वी कैन say that these two triangles are congruent. क्यों? Because if two angles of one triangle are correspondingly equal to two angles of another triangle, then third angle will also be equal. And if third angle is equal, it means what? It means these two triangles are congruent. So in place of ASA, if there is AAS type condition are there, ठीक है, अगर AAS type का condition बनता है, तो we can frequently say that these two triangles are congruent. Okay, now next is SSS congruency condition. What is this? Its name is side means if all the three sides of one triangle ABC are correspondingly equal to all the three sides of another triangle PQR, then in this condition we will say that these two triangles are congruent by side criteria of congruency. Okay, what is given here? Here it is given that AB is equal to QR, AB is equal to QR, BC is equal to PR, and AC is equal to PQ. Okay, so all these three sides of one triangle are corresponding equal to three sides of another triangle. So by side these two triangles will be congruent. Okay, let us move to next criteria of congruency, that is RHS. ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ना वेयर वी हैव टू यूज दिस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी.
this is applicable only in right angle triangle. If two triangles are right angle triangle mean to say if one angle measures 90 degree, then that is right angle triangle. So here if these two triangles are right angle triangle, only then this RHS criteria of congruency will be applicable. Okay, so here what does this right hypotenuse side congruency condition says? It says that two triangles should be first of all they should be right angle. Okay, right angle triangle, then their hypotenuse should be equal. Hypotenuse is what? Longest side of right angle triangle. Longest side कैसे पता करेंगे? It is opposite to the, it will lie just opposite to the longest angle, that is 90 degree. 90 degree के just opposite वाला जो side होगा, that is hypotenuse. तो hypotenuse should be equal and any of the corresponding side, either that is AB PQ or that is BC and QR. ठीक है, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड एक, ठीक है, किसको? हाइपोटेनस और 90 डिग्री एंगल को छोड़ करके, तो राइट हाइपोटेनस साइड, these two triangles will be congruent by RHS. Okay, so I hope you understood this concept well. Now let us do some questions, and these all questions I have selected randomly, and these all questions are very much important due to the point of view of the examination. Okay, तो मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के साथ साथ ठीक है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने वो अच्छे क्वेश्चंस उठा करके रखे हुए हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं. लेट अस सी AB is the line segment and P is its midpoint. Where is this P? P is here. P is the midpoint. D and E are points on the same side. This D and E are points on the same side of AB such that BAD means this angle. BAD, this angle, let us say this angle is 1, is equal to ABE, say this angle 2 is and EPA, this angle, let us say 3, and DPB, let us say this is 4, are equal. These angles are equal. See the above right sided figure and show that triangle DAP, this triangle DAP is congruent to EBP. यही हमको congruent prove करना है, and we have to prove that AD is equal to B. So I would like to tell you that we can prove it by CPCT. Na? As you prove this, it will be automatically proved by CPCT, that is the congruent corresponding parts of two congruent triangles. ठीक है, let us see. पहले तो इसमें लिखेंगे कैसे, इसके सोल्यूशन को लिखने का तरीका क्या है. सबसे पहले आपको लिखना है कि व्हाट इज गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन ये है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड AP इज इक्वल टू BP. व्हाई? बिकॉज P इज मिड पॉइंट. व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर? You have to prove that triangle DAP is congruent to triangle EBP. Okay, and this is first that you have to prove, and AD is equal to BE. देखो प्रूफ में देखते हैं, सोल्यूशन में इसके देखते हैं क्या करेंगे. ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होता है, जिस ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है ना, उसी को उठा लो. तो यू वुड हैव टू राइट दैट इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP. अब आपको वो सारे कंडीशंस यहाँ पर देखने हैं कि वो 5 क्राइटेरियाज में से कौन सा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. तो ठीक है, देखिए 2 एंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है ना. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमको इंडिकेट कर रहा है किधर चलने के लिए, या तो एंगल साइड की तरफ चलने के लिए, या तो ASA की तरफ चलने के लिए, है ना. आइदर AAS और ASA. ठीक है, तो पहले देखते तो हैं कि क्या क्या गिवन है. DAP का एंगल 1 इक्वल है किसके? EBP के एंगल 2 के. देखो दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 हो गया. ठीक है, एंड AP इज इक्वल टू BP. AP इज इक्वल टू BP. दिस इज, यू वुड हैव टू राइट दैट दिस इज गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है. अच्छा, वन मोर, DAP में APD, एंगल APD क्या हम लिख सकते हैं? एंगल APD इज इक्वल टू BPE. ठीक है, क्यों हमको लिखना पड़ेगा? ठीक है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे. अच्छा, यहां पर कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते समय आपको क्या करना चाहिए
जो कुछ भी आपने अप्लाई किया, जैसे आपने लिखा कि एपीडी इज इक्वल टू बीपीई, एपी इज इक्वल टू बीपीई, तो बीपी यू वुड हैव टू राइट इट्स रीजन। क्या रीजन है आपको गिवन है, या आप अपने से ले रहे हैं, या अगर आप अपने से ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, है ना, उसको आप आंसर देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे कि सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां पर हम लोग एक एंगल ये भी ले लेते हैं, एंगल 5। अब देखो डीएपी में हमें ये एंगल इक्वल दिखाना है किसके, वी हैव टू शो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, दिस एंगल इसके इक्वल दिखाना है। तो इसको अगर हमने दिखाया तो यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, वी वुड हैव टू राइट दैट एंगल 3 is equal to angle 4 and we are adding this 5, 3 plus 5, 3 plus 5 is equal to 4 plus 5. if equals are added in equals 3 and 4 were equal ना, तो उसमें हम equal amount add कर रहे हैं, that is angle 5 and angle 5 both side. so if equals are added in equals then wholes are equal, है ना, जो सम आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो दैट इज एपीडी, यहां से आपका सो एपीडी क्या हो जाएगा, एपीडी विल बी इक्वल टू बीपीई। ओके, सो बाय विच क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल, तो बाय ASA rule these two triangles DAP is congruent to triangle EBP. ओके, तो बाई CPCT जैसे ये प्रूव हो गया, यू विल राइट दैट बाई CPCT AD is equal to BE. Okay, so I hope you understood. These two parts are proved now. Okay, you can take. Let us move to next question. Let us see this. In the figure, PQRS is a quadrilateral and T and U are respectively points on PSRS such that PQ is equal to RQ. PQ is equal to RQ. Let us see where it is. PQ is equal to RQ. PQ is equal to RQ. This is equal. Okay, PQT, this angle equal to RQU, this angle. ठीक है, and TQS, this angle is equal to this angle UQS. What you have to prove, you have to prove that QT is equal to QU. QT is equal to QU. देखो QT and QU ये किसका पार्ट है, QT is part of PQT, QU is part of RQU. एक तो इन दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, बट हियर वी विल फेस इशू, वी विल फेस प्रॉब्लम टू शो द कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, QT is also part of TQS and UQS, these two triangles, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा लेंगे, PQ, we will take PQS and RQS, ये दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेंगे और फिर हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, वहां से कुछ खोजेंगे बाई CPCT और फिर इन दोनों ट्रायंगल को ला करके हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो QT एंड QU कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। लेट अस सी स्टूडेंट्स, हियर वी कैन राइट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। आप नंबरिंग कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां पर गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन हियर, हियर इट हैव बीन गिवन दैट दिस एंगल PQT means angle 1 is equal to angle 4, RQU है ना, angle 1 is equal to angle 4, okay, and angle 2 is equal to angle 3, ठीक है, okay, and PQ is equal to QR, PQ is equal to RQ या QR, you can write. What you have to prove, what you have to prove, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। प्रूव क्या करना है, QT is equal to QU, QT is equal to QU प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज दिस टू ट्रायंगल्स PQS। सॉल्यूशन देखो कैसे कैसे, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल PQS, PQS एंड ट्रायंगल इधर से ले लो RQS, ट्रायंगल RQS, दोनों ट्रायंगल में हम क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे ये देखो, पहले तो आपने ट्रायंगल कौन कौन सा चूज किया ये देखिए, PQS
एस चूज किया, पी क्यू एस चूज किया, और दूसरा आपने क्या चूज किया, इसको भी देख लो आप, इसको भी देख लो क्या चूज किया, दूसरे को चूज किया आपने आर क्यू एस, आर क्यू एस। आई होप यू अंडरस्टूड, दोनों को मैंने लेबल कर दिया है अलग अलग कलर से, अलग अलग कलर से, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, पी क्यू एस में, पी क्यू एस में जो पी क्यू है, पी क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू के, इट इज गिवन, दैट इज इक्वल टू आर क्यू, इट इज गिवन। अच्छा, क्या हम पी क्यू एस को could we write this pqs is equal to rqs? Yes, why not? We can write pqs is equal to rqs. Let us see how. Since it have been given that angle 1 is equal to angle 4, angle 1 is equal to angle 4, angle 2 is equal to angle 3, तो if equals are added in equals, है ना, दोनों को ऐड कर देते हैं तो भी तो क्या होगा, जो सम आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल 1 + 2 दैट इज pqs एंड एंगल 3 + 4 दैट इज rqs। So these two angles are equal, and you are looking that this qs and qs is equal to qs. This is common, this is common. So students, here you will write that by which criteria, by side angle side, by side angle side। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको दो साइड मिला और एक इंक्लूडेड एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल PQS is congruent to triangle RQS। और जैसे ही ये congruent प्रूव हुए, PQS कौन कौन सा, PQS और RQS, हमको यहां से ये दोनों एंगल जो है ना, कौन सा, PQS मतलब PSQ और RSQ, तो बाई CPCT हम लिखेंगे, बाई CPCT वी कैन राइट, इसको भी नंबरिंग करना चाहो तो 5 = 6 कर दो, है ना। वी कैन राइट बाई CPCT एंगल 5 = एंगल 6, ठीक है। देखो ये PSQ एंड RSQ, बट हमने इसको नंबरिंग कर दिया सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इजिली। तो 5 = 6। अब देखो, अब हमको QT प्रूव करना है ना, अब हम आसानी से इसको इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, किसमें, TQS और UQS में। सो यू विल राइट दैट नाउ इन ट्रायंगल्स TQS, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक, छोटा वाला ट्रायंगल TQS एंड ट्रायंगल UQS, in these two triangles now what you will apply। अभी इधर तो ये साइड इक्वल वाला है नहीं ना, है नहीं, तो what you will write, angle 2 is equal to angle 3, angle 2 of this triangle is equal to angle 3 of this triangle, and this you are looking that this QS is equal to QS is common, this is what, common, and you can write that this was given, and angle 5 is equal to angle 6, angle 5 is equal to angle 6, it have been proved, you have just proved it here, 5 is equal to 6। so here we got side angle angle side angle, so by angle side angle rule, these two triangles mean triangle TQS is congruent with triangle UQS, okay, UQS। so by CPCT you will write that by CPCT this QT is equal to QU, by CPCT QT is equal to QU, this have been proved, okay। I hope you understood। let us move to next question, आगे बढ़ते हैं। triangle ABC is an isosceles triangle, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, this AB is equal to AC, side BA is produced, okay, 2D D तक प्रोड्यूस किया गया, such that AD is also equal to AB, AD is equal to AB। तो see above right sided figure, below figure, so that BCD is a right angle, है ना, BCD क्या है, right angle है, means you have to prove that angle BCD is 90 degree, okay। given क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, given क्या है, given that AB is equal to AC, AB is equal to AC and AD is equal to AB। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखते कैसे प्रूव करेंगे, जरा सा सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखो और मुझे बताओ, ठीक है, क्या कि सिंस AB is equal to AC, AB is equal to AC and AB is also equal to AD, it is given now. It means things which are equal to the same things. It implies that AC is equal to AD. AC is equal to AD. Things which are equal to the same things are equal to one another. अच्छा, फिर क्या करेंगे, हाँ फिर हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इसमें भी हम करेंगे नंबरिंग, है ना, 1 2 3 एंड 4 हमने कर लिया, इसका नंबरिंग कर लिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देखिए हमको पता है कि वी नो दैट ये थ्योरम आपने पढ़ा है, मैंने प्रूव नहीं कराया, ठीक है, बट यू शुड नो दैट वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स ना, अगर एक ट्रायंगल है उसके दो साइड इक्वल है ना, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, यह थ्योरम आपका एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपको वो जानना चाहिए। देखो, तो सिंस आप लिखोगे क्या कि सिंस AB is equal to AC, it implies that angle 1 is equal to angle 2. We will write that angle 1 is equal to angle 2. Also AD is equal to AC, कैसे, यहां मैंने बता दिया। ठीक है, तो it implies that angle 3 is equal to angle 4, ओके, एंगल 3 is equal to angle 4, ये दो हो गया। अब देखो इसका हम लोग कैसे वाइज यूज करते हैं इसका, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल BCD, दिस ट्रायंगल है ना, ये BCD वाले ट्रायंगल में, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, हम सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, दैट इज एंगल B प्लस एंगल BCD एंड प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो B1 किसके इक्वल है ना, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज BCD प्लस एंगल D इज व्हाट, एंगल D इज एंगल 4 इज इक्वल टू 180। लिख लो इसको, 1 किसके इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2, तो वी विल चेंज इट 2 एंड प्लस BCD एंड प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3 is equal to 180 degree. Now you could just see that 2 plus 3, that angle is BCD. So you will write BCD and plus, already here it is BCD, so it will be 2 times angle BCD is equal to 180 degree. So BCD will be equal to 180 by 2, that is equal to 90 degree, I hope you अंडरस्टूड। अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से समझो। ठीक है, क्या गिवन था, AB इज इक्वल टू AC, तो इफ AB इज इक्वल टू AC देन दिस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड AB इज इक्वल टू AD, इफ AB इज इक्वल टू AD एंड AB इज इक्वल टू AC, इट मींस AD एंड AC बोथ विल बी इक्वल, तो एंगल 3 विल आल्सो बी इक्वल टू 4। फिर हमने क्या किया, BCD में तीनों एंगल का सम, किसका एंगल B, एंगल BCD एंड एंगल D, इन तीनों एंगल का सम हमने क्या लिया, 180 लिया। ठीक है, फिर 1 किसके इक्वल है, 2 के, 4 किसके इक्वल है, 3 के, चेंज कर दिया हमने, और 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू BCD, तो BCD दो बार आ गया, तो 2 टाइम्स BCD इज इक्वल टू 180, देयरफॉर BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड हियर द थिंग दैट वी हैड टू प्रूव, तो इट हैव बीन प्रूव्ड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है, ये देखो, ये काइट का भी प्रॉपर्टी है ना, यही तो काइट भी है। ठीक है, देखते क्या क्वेश्चन है, AB इज द लाइन सेगमेंट, P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from points A and B। ठीक है ना, P और Q जो है वो A और B से इक्विडिस्टेंट पर हैं। ठीक है, so that
द लाइन PQ is the perpendicular bisector of AB. Line PQ is perpendicular bisector of AB. Mean to say, what you have to prove here? You have to prove that AC bisect करेगा ना, bisect करेगा तो AC is equal to BC you have to prove. And क्या prove करना है? That PQ perpendicular bisector है ना, तो PQ is perpendicular to AB. That is simple way में लिखे हैं तो PCA is equal to PCB. ये दोनों किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री एंगल के इक्वल होंगे. तो पहले यहां लिख लो कि व्हाट आर द गिवन कंडीशंस. गिवन क्या क्या है आपको? गिवन है AP इज इक्वल टू BP एंड AQ इज इक्वल टू BQ. ठीक है, ये चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. देखो सबसे पहले तो हमें AC और BC प्रूव करना है. AC और BC जब हम PCA PCB चूज करें या तो ACQ BCQ चूज करें तभी आएगा, है ना. लेकिन अगर इसको हम चूज करते हैं चाहे ये दोनों या ये दोनों, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हम क्राइटेरिया लगाएं क्या. क्यों? क्योंकि अगर आप ये दोनों यूज कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ PA और PB इक्वल दिया है, नथिंग एल्स. ये साइड अगर आप कॉमन दिखा भी देते हैं तो एंगल तीसरा साइड ये तो आपको प्रूव ही करना है. तो दो साइड तो आपको मिल जाएंगे लेकिन एंगल नहीं मिल रहा है. तो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, यहां पर नंबरिंग कर दो. ठीक है, पहला काम करो. फिर देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, PAQ लेंगे और PBQ लेंगे. ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ. ओके, PAQ एंड PBQ. देखो दोनों में क्या गिवन है? PA इक्वल है किसके? PB के. PA इज इक्वल टू PB. AQ इज इक्वल टू BQ. ओके, एंड यू आर लुकिंग दैट दिस PQ. ये देखो PQ दोनों में क्या है? कॉमन है. PQ क्या है? कॉमन है. PQ इज इक्वल टू PQ. दिस इज कॉमन. ये लिख दो गिवन, राइट डाउन गिवन, राइट डाउन कॉमन. ओके, सो बाय विच क्राइटेरिया? बाय side rule. By side rule, triangle PAQ is congruent to triangle PBQ. इसका अच्छा हमें काम नहीं था, लेकिन ये हमें एक विपन देगा जो मैं आगे उससे हमें लड़ना है. ठीक है, तो बाई CPCT दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, दिस टू ट्रायंगल्स, तो वी कैन राइट दैट दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना. एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के इक्वल. ठीक है, बाई CPCT ये प्रूव हो जाएगा. ठीक, ये भी एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, ये भी एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, ये सब प्रूव हो जाएंगे. व्हाई? बिकॉज ऑफ CPCT. बट वी नीड ओनली दिस वन, 1 and 2. ओके, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसी को ले रहे हैं. ठीक है, देखो अब क्या करेंगे. नाउ वी विल चूज दिस टू ट्रायंगल्स PCA. इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB. In these two triangles, you will write that PA is equal to PB. PA is equal to PB. This is given. Okay. Angle 1 is equal to angle 2 now. Now angle 1 is equal to angle 2. You have proved this. Okay. And PC is equal to PC. PC is equal to PC. This is common. So what happened? Which criteria? That is side angle side. So by side angle side, triangle PCA is congruent to triangle PCB. यहां भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी विल राइट दैट बाय CPCT दिस AC is equal to BC. नाउ AC is equal to BC. ये प्रूव हो गया कि उसने क्या किया? बाइसेक्ट किया. PQ ने क्या किया? बाइसेक्ट किया. तो AC is equal to BC. अभी हमको क्या दिखाना है कि ना, हमें दिखाना है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सो. देखिए इसमें जैसे ही बाय CPCT यू हैव प्रूव्ड बाय CPCT. ठीक है ना, बाय CPCT आपने लिखा ना कि बाय CPCT AC इज इक्वल टू BC. ठीक है, ऑल्सो ये भी एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. ऑल्सो PCA is equal to PCB. तो let us say x डिग्री, say this x, है ना. तो ये x दोनों हो गया. तो ठीक है,
क्या हो जाएगा, एंगल पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, है ना, लीनियर पेयर से दोनों लाइन पर ही, स्ट्रेट लाइन पर ही है, तो लीनियर पेयर है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, therefore 2x is equal to 180 and x is equal to 180 by 2, that is equal to 90 degree. Therefore this PCA is equal to PCB, दोनों किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री के, एंड दीज आर प्रूव्ड, दीज आर प्रूव्ड। ये क्या हो गए, प्रूव हो गए। क्या प्रूव करना था कि सो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो PQ ने क्या किया, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया किसको, AB को। ठीक है, वी हैव प्रूव्ड दिस। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ इजी है ये। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, B इज एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है, and BP and BQ are perpendicular from B to arms of angle A, एंगल A के आर्म्स, ठीक है, दोनों आर्म्स पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, so that आपको क्या बताना है, so that triangle APB and triangle AQB and AQB both are congruent, and then you have to show that BP and BQ are equal और B is equidistant from arms of angle A, B means BP, ये वही सेंटेंस है, ठीक है ना। BQ और BP इक्वल होगा, इसका मतलब आर्म्स ऑफ एंगल A क्या है, ये एक है AQ और एक BP, तो इक्विडिस्टेंट मतलब BQ और BP इक्वल है। तो हमें कुल मिलाकर के ये प्रूव करना है। ये पहले अगर हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे ना, तो ये बाय CPCT प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। गिवन हमको क्या है, ये देखो गिवन क्या है, गिवन दैट BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ and BP is also perpendicular to AP, ठीक है, and ठीक है, नथिंग एल्स। हाँ, गिवन है लाइन L इज द बाइसेक्टर, ये जो लाइन है ना ये बाइसेक्टर है, तो वी कैन नेम दिस एंगल एंगल 1, एंगल 2, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, लिखेंगे क्या प्रूव करना है उसको भी लिख लो। प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ठीक है। अब देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए, या सोल्यूशन लिखिए या प्रूफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, दोनों ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए आप नंबरिंग कर सकते हो, इसमें भी दे सकते हो, नहीं दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के। व्हाई, बिकॉज इट इज गिवन, and BQA या AQB, एंगल APB is equal to एंगल AQB, ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। क्यों, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। एंड AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB, दैट इज व्हाट, कॉमन। AB दोनों में आ रहा है ना, दोनों ट्रायंगल में, तो कॉमन आ जा रहा है, दोनों क्या आ जा रहे हैं, कॉमन आ जा रहे हैं। तो एंगल साइड, एंगल साइड, है ना, बाय एंगल साइड रूल, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ओके, सो बाय CPCT ये भी प्रूव हो जाएगा। इसी के साथ BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है, ये भी हमारा प्रूव हो गया। दूसरा भी सेंटेंस आप लिख दोगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस and how we are applying these criteria of congruency to prove these questions. Okay, now let us move to next question. Next question is this, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। in the figure if angle x is equal to angle y, आप कहोगे कि सर आपको ही प्यारा लगता है, हम लोगों को तो नहीं लगता, पता नहीं कैसे होगा। आप लोग बड़े आसानी से बोल देते प्यारा है, हमारी भावनाओं को समझिए सर। अच्छा, इन द फिगर इफ एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB, AB कहाँ, ये है AB इज इक्वल टू CB, ठीक है। प्रूव दैट AE इज इक्वल टू CD, ठीक है। पहले लिख लेते हैं ना क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है, देखो व्हाट आर गिवन,
ठीक है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई एंड ए बी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू सी डी, ए इज इक्वल टू सी डी। देखते हैं जरा सॉल्यूशन में। देखो, क्या हम ये ले सकते हैं क्या, ए बी ई, एक ट्रायंगल ये ले लें, एक ट्रायंगल ये ले लें ना, ए बी ई ले लें, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल इसको ले ले। देखो, ए बी ई लिया तो सी बी डी ले लेते हैं। देखो, सी बी डी ले लेते हैं, है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया, तो यहां पर आपको समझना है कि कैसे आप यहां पर कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे, कैसे आप यहां पर कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे। पहले आप लिख लो ना कि इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी बी डी, ठीक है, सी बी डी। देखो, ए बी ई एंड सी बी डी, ठीक है, ओके। एक तो आप देख रहे हो कि ये एंगल जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, am I right? इट इज कॉमन इन बोथ। इसको लेबल कर दो, एंगल 1 ले लो, 2 ले लो और यहां 3 ले लो, ठीक है ना। आप यहां क्या लिखोगे कि इसका ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी या सी बी, दैट इज गिवन एंड दिस एंगल इज कॉमन। एंगल 1 किसके कॉमन, 1 के, दिस इज कॉमन, दिस इज गिवन, है ना, ये गिवन है, ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन हो गया, साइड एंगल मिला। अगर ये एंगल मिल जाए, ए बी ई में ये एंगल मिल जाए और सी बी डी में ये एंगल मिल जाए, तो हम लिख देते हैं ना, मिल जाएगा कैसे, पहले लिख देते हैं जो हमें काम है, एंगल 3, ए बी ई का एंगल 3 और सी बी डी का एंगल 2, ये वाला एंगल दोनों इक्वल हमने लिख दिया। कैसे लिख दिया ये देखो जरा सा, क्यों लिख दिया हमने, अपने मन से थोड़ी लिख देंगे, उसका आंसर भी देना होगा आपको, ठीक है। तो उसका आंसर दीजिए कैसे है। देखो, एंगल 2 प्लस एंगल x, इसका सम कितना हुआ, 180 हुआ लीनियर पेयर से। एंगल 3 प्लस एंगल y, इसका भी सम क्या हुआ, 180 हुआ, कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक है। ये दोनों किसके इक्वल हैं, दोनों का सम 180 के इक्वल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल y एंड इट हैव बीन गिवन दैट x इज इक्वल टू y इज गिवन। सो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। यही आप एक्सप्लेनेशन इसका लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये दिखा सकते हैं, कि एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, ठीक है, एंड ये दिखा सकते हैं कि एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3, ठीक है। तब भी आप x और y इक्वल है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भी आप यहां से दिखा सकते हैं कि 2 3 के इक्वल होगा। कई तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं, या बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपको क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगानी है तो थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में डायरेक्टली या इजिली आप नहीं पा सकेंगे ना, ठीक है। देखिए, तो यहां क्या हो जाएगा, बाई क्या लगाया हमने, एंगल साइड, ठीक है ना, बाई एंगल साइड, यही लगा ना, बाई एंगल साइड, 2 एंगल लगा, एक साइड लगा, तो बाई एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाई CPCT आपका AE किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल हो गया, है ना। You will write that by CPCT this AP क्या था, A is equal to CD प्रूव हुआ, A is equal to CD by CPCT, it is proved, okay. Now let us move to next question.
इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, देखो ABC राइट एंगल्ड एट C, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होती है यहाँ से। M इज मीट पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, M क्या है, इसका मीट पॉइंट है, मीन्स BM इज इक्वल टू AM, ठीक है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस टू अ C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया और इसको प्रोड्यूस किया सच दैट DM इज इक्वल टू CM, है ना, DM इज इक्वल टू CM। पॉइंट D इज ज्वाइंड टू पॉइंट B, D को B से ज्वाइन कर दिया, सी द फिगर, ठीक है। एंड सो दैट, थोड़ा सा ये इस पर आप लोग इन वर्ड पर एबव बिलो साइडेड पर मत जाइएगा, बस क्वेश्चन पर जाइए, ठीक है। देखिए, सो दैट AMC, पहला क्या है, AMC इज इक्वल टू BMD, ये आपको दिखाना है, ये दोनों ट्रायंगल को आपको दिखाना है दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे दिखाएंगे, देखिए इजी है, पहले आप लिखेंगे क्या, गिवन, गिवन क्या है, गिवन है AM is equal to BM, AM is equal to BM and CM is equal to DM, ठीक है। चलिए प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करने वाली चीजें ये 4 पॉइंट आपको प्रूव करने हैं, लिख लेते हैं क्या क्या है। पहले में है ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD, second you have to prove angle DBC is equal to 90 degree, third you have to prove DBC is congruent to ACB, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन कहां से करेंगे, पहले ये दो ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, क्या क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल, फर्स्ट प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। इवन मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया समझा दिया ना, तो आप बड़े ही आसानी से इसको करेंगे। देखिए कैसे, AM इज इक्वल टू BM, ये देखो इसका जो साइड AM है इसके करेस्पॉन्डिंग साइड BM के इक्वल है, इट इज गिवन। अच्छा, AMC दिस एंगल, AMC इज इक्वल टू BMD दिस एंगल, BMD इसके इक्वल है, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तीसरा AMC का MC और BMD का DM, दैट इज ऑल्सो इक्वल, दैट इज ऑल्सो गिवन, है ना, ये भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि गिवन है। तो यहां कौन सी क्राइटेरिया लगी, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड रूल, दिस टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। अब इससे देखिए ये तो आपने प्रूव कर दिया, लेकिन यहां से आप कुछ लेते चलिए, लेते चलिए, कैसे, बाई CP/CT लेते चलिए, क्या क्या लेंगे, अगर इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो यहां आप डायरेक्ट लिख सकते हो AMC BMD था ना, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, 1 का करेस्पॉन्डिंग 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये हम यहां से लेकर के चलेंगे। दूसरा हमको यहां से क्या मिलेगा, AC इज इक्वल टू BD मिलेगा, क्या मिलेगा, AC इज इक्वल टू BD, ये भी लेते चलिए, दोनों के करेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना इक्वल होंगे, ठीक। अब चलिए दूसरा जो हमको अगला प्रूव करना है, दूसरा क्या प्रूव करना है, DBC, ठीक है, सेकंड में हमको प्रूव करना है DBC। अब मुझे एक बात बताइए, सिंस एंगल 1, मैंने कहा ना कि लेते चलिए जो यहां से मिल रहा है, ठीक है, वो आगे हम लोग बम फोड़ेंगे उधर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वल है ना, तो इट इंप्लाइज दैट AC इज पैरेलल टू BD, है ना, AC इज पैरेलल टू BD, ये एंगल इसके इक्वल हो गया ना, तो AC BD के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्यों पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये लाइन क्या हो गया, AC और BD पैरेलल प्रूव हो गया। और जैसे ही ये पैरेलल प्रूव हुआ, नाउ हम लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल DBC, दोनों का सम कितना, 180 डिग्री, कैसे, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री हो गया यहाँ पर। तो ये ACB ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री, प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू
180, तो यहां से एंगल डीबीसी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 90। तो डीबीसी प्रूव हो गया किसके इक्वल, 90 के इक्वल प्रूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट थर्ड हमको क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट हमको प्रूव करना है, नेक्स्ट प्रूव करना है ट्रायंगल डीबीसी। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल डीबीसी, कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। थर्ड देखिए, इन ट्रायंगल लिखेंगे कि इन ट्रायंगल डीबीसी, अब ये डीबीसी प्रूव करना है किसके, किसके, एसी बी के। तो एंड ट्रायंगल एसी बी, दोनों को देखिए क्या करेंगे, डीबीसी और एसीबी में आपने अभी भी प्रूव किया है रिसेंटली, यहां पर मैंने कहा था कुछ लेते चलिए काम आएगा। तो डीबी इज इक्वल टू सीबी, एसी, डीबी इज इक्वल टू एसी, ये हमने प्रूव किया है। डीबीसी एंगल जो है, एंगल डीबीसी दैट इज इक्वल टू एंगल एसीबी, दैट इज इक्वल टू एंगल एसीबी, ईच 90 डिग्री, अब तो दोनों 90 डिग्री हो गए हैं, ये हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। और एक साइड देखिए, बीसी इज इक्वल टू बीसी, है ना, बीसी और सीबी, बीसी इज इक्वल टू सीबी, दिस इज कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, यहां पर देखो ना, ये इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हो गए। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड रूल, these two triangles, triangle DBC, DBC is congruent to triangle ACB, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है ना, तो यहां भी हम बाई सीपीसीटी कुछ लेते हैं ना, बाई सीपीसीटी यहां से भी हम ले सकते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है ना डीबीसी का, सीडी और एबी ये भी इक्वल हो गए, है ना, ठीक है, सीडी इज इक्वल टू एबी। अब देखो जरा सा, यहां पर ऑलरेडी आपको क्या प्रूव करना है, फोर्थ वाले में सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। तो देखो एबी हमें रखना है, सीडी को हम ब्रेक कर सकते हैं, सीडी को ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीएम प्लस डीएम, सीएम प्लस डीएम इज इक्वल टू एबी। और डीएम भी आपका किसके इक्वल है, डीएम इज ऑलरेडी इक्वल टू सीएम, तो हम लोग लिख लेंगे सीएम प्लस डीएम की जगह भी सीएम इज इक्वल टू एबी, तो 2 टाइम्स सीएम is equal to AB, so CM is equal to half of AB। यहां से ये फोर्थ आपका प्रूव हुआ, एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। नाउ इफ यू रिक्वायर्ड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके ओके। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is a triangle, ABC is a triangle in which altitudes B, E and CF, altitude क्या होता है मैं बता दूं आपको, पहले तो आप ये जान जाओ कि एल्टीट्यूड क्या होता है किसी ट्रायंगल में, ठीक है। एबीसी सपोज करिए एक ट्रायंगल है, पॉइंट ए एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, तो ठीक है ये क्या होगा, अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है इसमें कि ABC is a triangle in which altitude BE and CF to the sides AC and AB are equal, ये एल्टीट्यूड इक्वल है, पहले गिवन लिख लो, क्या गिवन है, गिवन दैट एल्टीट्यूड्स BE इज इक्वल टू CF, ये इक्वल गिवन है, ठीक है, BE इज इक्वल टू CF, सो दैट ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF, ये जो ABE है वो ACF के कॉन्ग्रुएंट है। चलिए लिख लेते हैं, प्रूव करते हैं, टू प्रूव ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ठीक है, ट्रायंगल ACF कैसे प्रूव करेंगे, दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। पहले ये अगर प्रूव हो गया ना स्टूडेंट्स, तो ये आसानी से प्रूव हो जाएगा बाई सीपीसीटी, इसको लेकर के हमें परेशान नहीं होना है। एंड ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जब AB AC के इक्वल हो गया, दो साइड इक्वल हो गया, तो दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखते हैं प्रूफ, देखिए कैसे करेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, देखो ABE कहां है, दिस इज ABE,
एंड दिस ट्रायंगल इज ACF। दोनों में ये पार्ट जो है ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दिस इज कॉमन। पहले तो यही लिखेंगे, ये इसके क्या है, कॉमन है। ओके, देन AEB, इसका देखिए AEB, ABE का AEB, एंगल AEB ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है किसके, AFC के। क्यों AFC के, क्यों इक्वल है भाई AFC के, बिकॉज ईच 90 डिग्री, दोनों किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल है। तो दो एंगल हमको मिल गए, दो एंगल। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो इसको आप थोड़ा सा अलग से करके लिख लो। देखो ये आपका बन गया क्या, AEB बन गया, और AFC आपका इस तरीके से बनेगा, ये AFC। आप देखो ये क्या था, ये 90 डिग्री था, ठीक है, ये भी 90 डिग्री था। एंगल ए दोनों में है, ठीक है ना, एंगल ए दोनों में है। और उसके बाद बी किसके इक्वल है, CF के इक्वल, इट इज गिवन। तो यू वुड हैव टू राइट दैट BE इज इक्वल टू CF, है ना, दिस इज गिवन। तो which criteria of congruency, angle side, you will write that by angle side rule these two triangles, triangle ABE is congruent to triangle ACF। तो by CPCT यहां से ये भी प्रूव हो जाएगा क्या, AB is equal to AC। okay, it implies that triangle ABC is isosceles triangle, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका दोनों प्रूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको भी देखिए क्या करना है। देखिए इन द बिलो फिगर PQ, ये साइड PQ इक्वल है किसके, PR के, एंड दिस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, प्रूव दैट PQS, थोड़ा सा हम इसको ना अलग करते हैं। देखो जरा सा, PQS कुछ इस तरीके से है, PQS। अच्छा, PRT स्ट्रक्चर बनाओगे, फिगर इसका ऐसा बनेगा, PRT। देखो दोनों में गिवन क्या है, पहली चीज तो ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों में, ये एंगल दोनों में है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, दैट इज कॉमन। दूसरा, ये एंगल जो है एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, एंगल Q एंगल R के इक्वल मिल गया। तीसरा क्या है, PQ इक्वल टू क्या है, PR, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड कौन सी क्राइटेरिया लगेगी। ठीक है, तो लगा डालो। पहले लिखो क्या गिवन, क्या है, गिवन है PQ is equal to PR and angle Q is equal to angle R. What you have to prove? You have to prove triangle PQS is congruent to triangle PRT। देखो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया अलग अलग फिगर में, PSQ बना दिया, PTR बना दिया। ठीक है, दोनों में क्या क्या गिवन है ये मैंने इंडिकेट कर दिया। आप वहीं सेम चीजें लिख दीजिए, सोल्यूशन हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PRT, दोनों ट्रायंगल में आप दिखा दो एंगल Q किसके इक्वल, एंगल S के इक्वल, एंगल Q किसके इक्वल, एंगल R के इक्वल। ठीक है, गिवन है एंड PQ इज इक्वल टू व्हाट, PQ इज इक्वल टू PR, इट इज ऑल्सो गिवन। और एक और ले लो, एंगल P is equal to angle P, that is common, so by which criteria, by angle side angle rule, triangle PQS is congruent to triangle PRT। this is done, we have proved it। let us move to next question, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, ये भी इजी है। ठीक है, इसको हम लोगों ने अभी कर भी दिया है। आई होप ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा। क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे बता दीजिए मुझे। राइट हाइपोटेनस साइड, और वहां पर हमने कुछ और लगाया था आई थिंक। ठीक, वहां पर हमने कुछ और लगाया था। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये एंगल इक्वल दिया हुआ था ना, तो हमने एंगल साइड लगाया था। ठीक है, यहाँ पर राइट हाइपोटेनस साइड लगेगा, देख लेते थोड़ा सा। सो दैट लाइन AP, ये लाइन जो AP है, AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम,
मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल गिवन, गिवन में बस क्या है कि P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस, है ना। गिवन में स्टूडेंट्स यहां पर है BP इज इक्वल टू CP, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव हियर एंगल, एंगल बना लेते हैं ना थोड़ा सा, देखिए एंगल ले लेते हैं 1 2, यही हमको दिखा देना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो दैट लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइन के बीच, ठीक है। अच्छा, तो प्रूफ देखिए इसका, दोनों ट्रायंगल ले लीजिए आप, दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, ABP, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ABP एंड ACP में क्या क्या दिखाएंगे आप, क्या क्या लेंगे देखिए, ठीक है। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या है, BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP, इट इज गिवन। और क्या है, AP दोनों में कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP, दैट इज कॉमन। आप देखोगे कि AP जो है, AP इज हाइपोटेनस ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स ना, ABP और ACP दोनों का हाइपोटेनस है AP, तो हाइपोटेनस इज इक्वल एंड वन अनदर साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो बाई RHS रूल, यहां पर लिखेंगे बाई RHS रूल, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, है ना। तो यू विल राइट दैट दीज आर प्रूफ, देन बाई CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या हुआ, प्रूव हो गया, है ना, ये भी प्रूव हो गया। तो आप लिख देंगे कि क्या हुआ, AP बाइसेक्ट्स, सो लिखेंगे कि सो AP bisects the angle between L and M, दोनों के बीच के एंगल को AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दिस इज डन, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 15, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, NCERT का ही है ना, बट यहां भी आपको प्रॉब्लम होती है। इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, ये देखो AC इज इक्वल टू AE, कहां गया AC, यस AC इज इक्वल टू AE। अच्छा, AB इज इक्वल टू AD, ये भी ठीक है। BAD दिस एंगल, लेट अस से एंगल 1 एंगल 2, EAC इक्वल है। आपको क्या दिखाना है, BC इज इक्वल टू D, है ना, BC इज इक्वल टू D, आपको इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, BC किस ट्रायंगल में आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, BC आ रहा है BAC में, BAC में बना लेते थोड़ा सा, BAC साइड में बना लेते हैं, BAC। दूसरा ट्रायंगल D किस में आएगा, D आएगा DAE में, तो DAE भी बना लो, DAE भी बना लो, ठीक है, DAE भी बना लो, DAE। अब जरा दोनों को रीड करो तो AC किसके इक्वल गिवन है, AE के इक्वल गिवन है ना। एंड AB इज इक्वल टू व्हाट, AD, ठीक है। अगर हम यहां पर तो देखो एंगल A क्या है, कॉमन है, अब ऐसे तो कॉमन दिखेगा बट कॉमन नहीं, यहां पर आपको ये चीज देखो जरा सा, इसको 3 लो, ये और ये इक्वल दिखा देना है ना, ये और ये इक्वल दिखा देना है। अगर ऐसा आप करने में सफल हो जाते हो, इफ यू आर सक्सेसफुल, देन यू विल बी एबल टू प्रूव दिस, ठीक है। तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया समझने के लिए। अब यहां पर ये जो पार्ट है, यही हमको क्या करना है, कौन सा, एंगल BAC और एंगल DAE, यही हमको इक्वल दिखाना है। अगर हम ये इक्वल दिखा देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा। तो लिखिए, आई होप आप समझ भी गए होंगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। गिवन AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD, एंड हमने ले लिया है ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट BC इज इक्वल टू D, BC is equal to D. So students, to prove this, what you have to do,
देखिए क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे बी ए सी जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई। देखिए दोनों में क्या होगा, बी ए सी में जो बी ए है वो किसके इक्वल, बी ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू डी ए, है ना, दैट इज डी ए। अच्छा एंगल बी ए सी लिख ही देते हैं, पहले जो हमें चाहिए था वो लिख देते हैं ना कि बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई। ये दोनों हमने इक्वल दिखा दिया, है ना, दोनों को हमने इक्वल दिखा दिया। फिर तीसरा हमने क्या लिया, बी ए सी का ए सी इक्वल हो गया किसके, डी ए के। यहां से देखो, अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा तो यहां से देखो। अच्छा एक चीज यहां पर आप इसको दिखा दीजिए ना कि क्यों आपने इक्वल लिया। आप लिखोगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और एंगल 1 में 3 ऐड कर दूं, ठीक है, और एंगल 2 में भी 3 ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या इक्वल हो जाएगा, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। ठीक है, देखिए अच्छा आगे बढ़े। बाई साइड एंगल साइड क्या लगाया हमने, बाई साइड एंगल साइड रूल। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके, बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए ई। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिखेंगे कि बाई सीपीसीटी लिखने की जरूरत है, हाँ बिल्कुल है, बीसी इज इक्वल टू डी। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही हमको प्रूव करना था, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। इसको ट्रायंगल्स को अगर इसमें फिगर में ना समझ में आए तो एक्सट्रैक्ट करना सीखिए। अगर आप एक्सट्रैक्ट करके लिखना सीख गए, आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां से केस स्टडी भी बन सकती है ना, केस स्टडी भी बन सकती है। ठीक है, यहां से बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए केस स्टडी में भी पहले हम इसको देखते हैं क्या क्या है कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस। एबीसी कहाँ है, एबीसी और डीबीसी ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस, मतलब एबी एसी के इक्वल और बीडी किसके इक्वल, सीडी के इक्वल। भाई आइसोसेलेस का मतलब तो यही हुआ ना। ठीक है, देन ऑन द सेम बेस बीसी, ये सब किस पर है, सेम बेस बीसी पर है, दोनों बीसी पर ही है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, ये बीसी के सेम साइड में, सेम साइड। सी फिगर, इफ एडी इज एक्सटेंडेड, अगर एडी को एक्सटेंड करें टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, सो दैट, फिर हमको क्या करना है, इतनी चीजें हमको प्रूव करनी है। ठीक, आप गिवन, आपको पता ही है क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं सीधे इसमें सोल्यूशन पे चलता हूं, वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन पर देखते हैं, इन ट्रायंगल, पहला प्रूव करने के लिए लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। देखो ए बी डी खोजो, ए बी डी और ए सी डी मिल तो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी मिल गया। ठीक है, एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, दो साइड मिल गया, एंगल तो कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ एक एडी भी तो दिख रहा है ना, देखिए कॉमन, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन, ये आपका क्या था, गिवन था, ये भी क्या है, गिवन है, एंड एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन है ना। तो बाई विच क्राइटेरिया, बाई साइड 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 रूल, बाई साइड 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 रूल, दिस टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अच्छा ये तो पहला तो प्रूव हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, जब भी 3-4 क्वेश्चंस दिए हों एक ही क्वेश्चन में, तो यहां अगर आप एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं तो वहां से कुछ ले लीजिए, कुछ मिलेगा, वो आपके काम आने वाला है। देखिए यहाँ एंगल नंबरिंग कर देना, तो बाई सीपीसीटी हम ले लेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एक ये ले सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं, ये देखिए यहां भी तो अगर हम 3-4 कर दें तो एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बाई सीपीसीटी हो जाएगा, ये काम आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड। ठीक, सेकंड में क्या है, एबीपी, एबीपी कहाँ है, ये देखिए एबीपी, ये ट्रायंगल एबीपी और एसीपी। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल
ABP एंड ट्रायंगल ACP। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यहां पर क्या लेंगे आप, ABAC तो इक्वल गिवन ही है, AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन है ना, पहला तो ये तो गिवन ही है। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी अभी मैंने क्या कहा कि ले लीजिए भाई, काम आने वाला है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज प्रूव्ड है ना, अभी अभी हमने प्रूव किया हुआ है। और AP दोनों में आ रहा है, AP दोनों में आ रहा है कॉमन, तो AP इज इक्वल टू AP। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, कॉमन, क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो यहां से बाय विच क्राइटेरिया, यहां से बाय विच क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे कि बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। देखो हम यहां से भी कुछ लेंगे, ये हमारा प्रूव हो गया ना, यहां से भी कुछ अवार्ड ले लेते हैं। वो अवार्ड क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बाई CPCT हमको अवार्ड मिला कि BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP, एक तो ये मिल गया, और दूसरा हमको ये भी मिलेगा ना, ये देखिए एंगल APB, APB इज इक्वल टू APC, ये भी तो मिलेगा हमको, ये भी मिलेगा भाई बाई CPCT। आगे बढ़ते, तीसरा क्या हमको करना है, कह रहे हैं कि एंगल जो AP है ना, बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये एंगल AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A एज वेल एज एंगल D को। ये देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, देखो जरा सा, हमको प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो देखो थर्ड कंडीशन में आप लिखेंगे कि सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एक और दिखा दो, यहां 5 और 6 भी ले लो, ठीक है, इसको भी दिखा दो, क्या दिखा दोगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। कैसे भाई, डिफाइन कर दो ना कि सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और जब 3 4 के इक्वल हो गया तो 5 क्या है, 5 180 माइनस, ठीक है, ठीक है, 180 माइनस 3 कर दे, अगर 180 माइनस एंगल 3 और 180 माइनस एंगल 4 कर दे तो आपका 5 और 6 इक्वल हो गया। तो लिखेंगे कि हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल D। ठीक, ये भी प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट आपको क्या प्रूव करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। तो ऑलरेडी देखो यहां पर हमने प्रूव कर दिया है क्या, BP इज इक्वल टू CP। तो सॉल्यूशन में देखो फोर्थ पार्ट में देखोगे, फोर्थ पार्ट में सिंस BP इज इक्वल टू CP इट इज प्रूव्ड ना, ये प्रूव हो चुका है ना, ये प्रूव हो चुका है। और ऑल्सो APB इज इक्वल टू APC, ये भी हमने प्रूव कर रखा है ना। तो ऑल्सो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। तो और दोनों का जो सम है, ये ना APB और APC दोनों का सम क्या है, 180 होगा लीनियर पेयर से। तो APC एंड APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल APB लिखें या 2 टाइम्स एंगल APC लिखें, किसके इक्वल, 180 के। तो यहां से 2 से डिवाइड कर दो 180 को ना, तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, दोनों की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ, प्रूव हुआ कि हेंस आप लिखेंगे कि हेंस AP is perpendicular bisector of BC and it is proved, ठीक है। देखिए ये 4 हमने प्रूव कर लिया। तो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज, जब इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आ जाएं तो पहला प्रूव करेंगे, वहां से बाई CPCT कुछ ले लीजिए, दूसरा प्रूव करिए, वहां से बाई CPCT कुछ ले लीजिए, तीसरा प्रूव करिए, वहां से भी कुछ लीजिए।
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से असेंबल होते हैं कि बिना, ठीक है, डायरेक्ट तो सब दिया नहीं रहेगा ना, आप एक एक प्रूव करते जाओगे, बाई सीपीसीटी लेते जाओगे, उसी से अगले क्वेश्चन में लड़ लेंगे, है ना, मेथड अप्लाई कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस क्वेश्चन इज दैट टू साइड्स ए बी सी एंड मीडियन AM of one triangle, median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and PQ and QR है, this is QR, ठीक है, this is QR and median PN of triangle PQR, ठीक है, इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है। सो क्या करना है, ABC is congruent to PQR। ये इवन ये क्वेश्चन आपका ना 10th में भी आता है ना, ये 10th में भी आता है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जरा सा देखिए कैसे, लेट अस सी कैसे। गिवन में लिखेंगे, गिवन दैट AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AM इज इक्वल टू PN, है ना, ये इक्वल गिवन है। ठीक, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव that triangle ABC is congruent to triangle PQR, पहला ये प्रूव करना है, और दूसरा प्रूव करना है सेकंड में triangle ABM is congruent to triangle PQN। ठीक है, तो पहला प्रूव करेंगे, देखेंगे पहले प्रूफ में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, in these two triangles how you are going to show that these two triangles are congruent, पहले ये देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक, सेकंड पार्ट को हम पहले प्रूव करेंगे इसमें, फर्स्ट को नहीं, ठीक है, क्योंकि ABC और PQR अगर हम इसको प्रूव करने जाएंगे तो AB इक्वल है किसके, PQ के, BC इक्वल है किसके, QR के, और कोई एंगल गिवन तो है नहीं, एंगल तो गिवन है नहीं, जब एंगल कोई गिवन है नहीं तो हम करेंगे कैसे, है ना, तो इसलिए हम पहले ये सेकंड पार्ट को लेते हैं, सेकंड पार्ट में क्या हमको करना है, ये देखिए लेंगे कि इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, देखो इसमें क्या है, ABM और PQN में AB किसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू PQ, इट इज गिवन। ठीक है, लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू PQ, दैट इज गिवन। ठीक है, AM is equal to PN, it is also given, AM is equal to PN, it is also given, है ना। अब देखिए ABM ये है ना, this is ABM, this is PQN, तो दो साइड तो इक्वल मिल गया, तीसरा साइड हम लिख देते हैं BM is equal to QN। अब BM QN के इक्वल होगा, कैसे लिखोगे कि सिंस BC is equal to QR, BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल गिवन है, BC इज इक्वल टू QR, ये इसके इक्वल गिवन है, तो जब गिवन है तो हाफ ऑफ BC, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट AM मीडियम बोला जाएगा, अगर ये मीडियन बोला जाएगा तब भी जब ये इसका मिड पॉइंट हो, किसका, अपोजिट साइड का, तो BC, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ये आपस में इक्वल होंगे, और हाफ ऑफ BC का हाफ BM और इसका QN। तो बाय विच क्राइटेरिया, बाय साइड रूल, ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, हम लिखेंगे बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और जैसे ही BQ के इक्वल प्रूव हुआ, अब आप आसानी से सेकेंड वाला प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल, सेकेंड प्रूव करिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, AB किसके इक्वल, AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आपने प्रूव कर दिया, और BC इज इक्वल टू QR, इट इज ऑल्सो गिवन, ये गिवन है, ये प्रूव्ड है, ठीक है, ये प्रूव्ड है, और ये भी गिवन है। कौन सी क्राइटेरिया आप बताइए, बाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है,
दोनों क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखिए, यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, बट उसमें क्या था, उसमें एल्टीट्यूड इक्वल गिवन था, यहाँ पर एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करना है ना। हियर यू हैव टू प्रूव दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, बट व्हाट इज गिवन, एबीसी इज आइसोसेलेस, है ना। एबीसी आइसोसेलेस मतलब ये जो है यहाँ पर ये जो दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन, AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन, ओके। एंड BE and CF are, which altitude BE and CF are drawn, आपको प्रूव करना है कि यही एल्टीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। थोड़ा एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखिए क्या क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, अलग से कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से बनेगा ना, A E और B, और दूसरा वाला AFC, एक्सट्रैक्ट कर लो। और देखो आपकी बार क्या गिवन है, ये A है, ये F है, ये C है। आप देखो AEB ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक। AFC भी 90 डिग्री होगा, ठीक। अच्छा, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, यस। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है ना। आई होप नाउ यू कैन सॉल्व इट, ठीक। तो आप इसको पहले तो लिखेंगे क्या कि गिवन क्या है, गिवन क्या है। देखो गिवन ले लीजिए कॉन्सेप्ट, गिवन आपका है, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC and BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB, ठीक है। चलिए प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, BE is equal to CF, है ना, BE is equal to CF। चलिए प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल AEB आप ले लो, AEB ले लो, एंड ट्रायंगल AFC ले लो, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया, लिख दीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन, एंड AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, दैट इज गिवन, ये भी गिवन है, ठीक है। एंड एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90 डिग्री, सब किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो बाई एंगल साइड, तो बाई एंगल साइड, देखो एंगल साइड, बाई एंगल साइड रूल, ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFC, AEB एंड AFC, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन बाई CP/CT क्या प्रूव हो गया, बचा है B इक्वल हो जाएगा CF के, तो BE इज इक्वल टू CF, so this is done and we have proved that altitudes are equal. So students, here I discussed with you that what is the concept of congruency, what are the criteria of congruency and how to use them to solve the questions, and I included total 16 questions, okay. So I hope that your concept is clear now, okay. So you have to practice more questions, आप NCERT के पूरे questions जो ट्रायंगल चैप्टर के हैं वो पूरा रिवाइज कर डालिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करिए, अपनी प्रॉब्लम को वहां शेयर करिए, आई विल शेयर सॉल्यूशन टू यू, ओके। थैंक यू एवरीवन, टिल देन एंजॉय, गुड बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू एवरीवन।